हम जब बच्चों को, यंगस्टर्स को एक रैबिट या एक हैन या एक डक उसके साथ मुलाकात करवाते हैं, तब उनको एक लाइफ की कीमत, एक मूल्य, एक वैल्यू ऑफ लिविंग बीइंग समझ में आती है। हमारे यजुर्वेद में जैसे कहा है, मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम, मित्रस्याहम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। मतलब कि लेट मी लुक अपॉन एवरी लिविंग बीइंग एज माई फ्रेंड and let all living beings look upon me as their friend. This is the message we want to give. Please subscribe to our channel Talkie Tales and do not forget to press the bell icon so that whenever we upload a video, you'll come to know. भवंस नेचर एडवेंचर सेंटर की एक इंटरेस्टिंग कहानी है। 2009 के अक्टूबर में हमारे पास से एक प्रपोज़ल लिया गया कि ये हम यहाँ पर क्या करेंगे, और वो प्रपोज़ल में मैंने कहा कि यंगस्टर्स को खास करके नेचर एजुकेशन, एनवायरनमेंट अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। और अब हम सब जानते हैं कि कुदरत से इंसान बहुत दूर आ गया है, हर चीज़ ख़त्म हो रही है, जंगल कट रहे हैं। तो ये संदेश के लिए ये एक प्रकृति शिक्षण केंद्र बने। तो हमने सोचा कि इस जगह पर ऐसे हम कुछ काम करें कि यहाँ पर यंगस्टर्स आए, दे डिस्कवर देयर ओन पोटेंशियल, देयर ओन पावर, एंड थ्रू एडवेंचर and combined with a lot of activities related to nature. जब हमने पहली बार इस जगह को देखा तो यहाँ पर बहुत कचरा था, lot of garbage, you know. It used to be all non-biodegradable waste like rubber, plastic, कांच. So whatever was, to be dumped from the other buildings being made within the campus was dumped here. Although it was erstwhile botanical garden, but it had become a garbage zone. And then that was our first introduction with the place. And only the large trees were there, but otherwise it was entirely barren. A lot of garbage in tons, I would say, was collected. It took us 8 months to clear up the garbage. 8 months. उसके बाद हमने यहाँ पर plantation चालू किया. So we first did the survey of what plants existed. And then we found that there were about 60 to 65 species of plants already existing here. Then we started plantation. And today in 2022, you would see that there are, 350 species of plants here. जब हम प्रकृति के साथ काम करते हैं तो चुनौतियाँ तो आती ही हैं. And that is what also happened in the beginning days. Once it so happened that there were, some local antisocial type, youngsters. ये जो जगह थी वो उनका अड्डा बना हुआ था. And when we had created that adventure structure, one day when I came to work, I found some of them climbing up and sitting on the top of the commando net. And it was a little unpleasant. The way I thought, let's treat it this way. We requested कि आप ऐसा मत कीजिए. हमने security को बुलाया. But the next day, the security came and tells me that अरे हिमांशु भाई, आप हमसे ज़्यादा उम्मीद मत रखिए. एक बार तो हम आ गए, लेकिन बार बार हम नहीं आ पाएंगे.
दे सेड नहीं, हमें थोड़ा धमकी मिलता है कि हम बाहर जाएंगे तो हमको मार दिया जाएगा। तो ऐसे ठीक है, आई हैव टू फाइंड इनोवेटिव वेज, आई कांट कीप ट्रबलिंग माई मैनेजमेंट ऑल द टाइम फॉर स्मॉल लिटिल थिंग्स। एंड देन आई स्ट्रक विथ एन आइडिया, आई वॉन्टेड private security for Nature Adventure Center. It should be loyal to us, it should not demand very high salaries, it should not demand pay hikes, and it should not even go on strike. And that is how Joy, our first guard, who's a Labrador dog, was inducted and recruited into Bhavan's Nature Adventure Center. And he is such a sweet soul, I tell you. And then others followed, Ninja, Nubra, Zing Zing, Ranger, and they are all adopted fellows. One is a Saint Bernard, the other is a Tibetan Mastiff, a German Shepherd. तो इस तरीके से हमारे guard soldiers arrived at the Nature Adventure Center in Bhavans. कि ये जो यंगस्टर्स थे, मैंने जिसके बारे में बताया कि कभी कभी कुछ ड्रग एडिक्शन करने वाले बच्चे आ जाते थे, यूथ टीनेजर्स, कभी कुछ अल्कोहलिक्स, और ये सब इनका अड्डा बन गया था ये जगह। द थिंग वाज दैट द स्कूल्स हैड स्टार्टेड कमिंग एंड they used to do all those activities on Nature Adventure, climbing the rock wall and doing rappelling, rifle shooting, archery. अभी इसमें एक इश्यू आता था कि बहुत सारे यंग गर्ल्स भी आते थे, टीचर्स भी आती थी, यंग टीचर्स भी आती थी, और ये कुछ इस तरह के लोग वहाँ पर बैठे रहते थे ऑलमोस्ट नियर द एंट्रेंस। तो इनको कैसे वहाँ से हटाया जाए? आई टुक अ स्पेशल परमिशन फ्रॉम माय सीनियर्स, और मैंने ये परमिशन लेके उनको अंदर बुलाया, नेचर एडवेंचर सेंटर के अंदर। तो ऐसे बच्चों के लिए मैंने सोचा कि उनको एक मौका दिया जाए, और उनको हमने रॉक क्लाइंबिंग सिखाई, रैपलिंग सिखाई, राइफल शूटिंग, आर्चरी, इस तरह की एक्टिविटीज़ सिखाई, और उनको एक दिन के 250 रुपये देने लगे। उसके बाद का स्टेज ये था कि जब जेवियर्स की कोई स्कूल के बच्चे आए, या ये अच्छी स्कूल के बच्चे यहाँ आने लगे और उनके टीचर्स आने लगे, एंड इमेजिन दे स्टार्टेड सेइंग कि बच्चे बोलते हैं 10th स्टैंडर्ड के कि सर मुझे ये कमांडो नेट पे चढ़ना है। टीचर बोलती थी सर इनको ज़रा ऊपर तक ले जाओ। सो अ बॉय हु वाज थ्रोन आउट ऑफ द सोसाइटी सोशली, उनको बच्चे और सेंट जेवियर्स तरह की स्कूल के टीचर्स भी सर करके बुलाने लगे। दैट इज सो डिफरेंट, इट इज़ एलिवेटिंग टू अ ह्यूमन माइंड, कि जिनको सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया था उनको रिस्पेक्ट मिली, एंड दैट इज समथिंग दैट कैन टच यू। आई थिंक सच अ प्रोजेक्ट कैन बी सोशली ट्रांसफॉर्मिंग ऑल्सो। So at Bhavan's Nature Adventure Center, our objective is to create beautiful things and people and make this world a better place to live in. हम जब बच्चों को, यंगस्टर्स को एक रैबिट या एक हैम या एक डक उसके साथ मुलाकात करवाते हैं, एक गिनीपिग को हाथ में लेके खेलते हैं, एक छोटे से पपी को, या इवन इफ़ इट इज़ अ टर्टल या कोई भी चीज़ है, वो एक लिविंग बीइंग के साथ इंटरेक्ट जब करते हैं, उसके नज़दीक आते हैं, तब उनको एक लाइफ की कीमत, एक मूल्य, एक वैल्यू ऑफ लिविंग बीइंग समझ में आती है। नॉर्मली जो पानी में रहते हैं उनको टर्टल बोला जाता है, एंड जो ज़मीन में रहते हैं उनको बोला जाता है टॉर्टोइज। तो ये बेसिक डिफरेंस है टर्टल एंड टॉर्टोइज में। जब एक सही उम्र में यंगस्टर्स को एनिमल्स के साथ रखा जाए, पेट्स के साथ मुलाकात करवाई जाए, इंटरेक्ट करवाया जाए, तो वो कभी एंटी सोशल नहीं बनेंगे। उनके जहन में कंपैशन, करुणा उत्पन्न होती है, और वो हर लिविंग बीइंग की वैल्यू, उसकी
डिविनिटी समझते हैं। My name is Ahmed and I'm a volunteer of भवंस नेचर एडवेंचर सेंटर। और मेरा नॉर्मली काम ये होता है, जब भी कोई इंजर्ड एनिमल्स आते हैं उनको ट्रीट करना, और सबसे बेस्ट इसमें हेल्प करते हैं हमारी वेटरनरी डॉक्टर। 2 डॉक्टर हैं जो हमें हमेशा 24/7 मदद करते हैं। वो वन इज़ डॉक्टर विनेरकर और दूसरे हैं डॉक्टर सुनित्रा जो बोरेवली में है। और बहुत बार ऐसे होता है कि हमारे कैंपस में भी बहुत सारे बर्ड जो इंजर्ड आते हैं, एंड वी आर लाइक स्पेशलाइज इन वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू। सो हमें पता होता है कि उनको ट्रीट कैसे करना है और उनको रिलीज़ कैसे करना है। और हमारा यहाँ पे जो आपने देखा होगा कैंपस है, उसमें बहुत सारे पेड़ हैं, तो हम कोशिश करते हैं यहीं पे उनको रिहाब करें, यहीं पे रहे वो। तो हमारी छोटी सी कोशिश यही होती है। और इसमें सबसे ज़्यादा मुझे मदद होती है वॉलंटियर्स की। And we are blessed with the college campus because we have a Bhavans college itself here. So we have there are a lot of zoology student, botany के student है जो हमें मदद करते हैं। अपकमिंग जनरेशन जो है वो गैजेट से जुड़ी हुई है, और हमारी कोशिश ये होती है कि हम उनको थोड़ा ब्रेक दें और नेचर या एनवायरनमेंट में उनको मिक्सअप करें। एंड आई एम डेड श्योर अगर आपको नेचर की आदत लग गई तो आप कहीं भी गलत जगह पे नहीं जाए। तो बेसिकली नेचर में जानना है तो आपको ऑब्जर्व करना है। 3 चीज़ें आप करो, आपके नाक, आपके आँख और आपके कान हमेशा नेचर में खुले रहने चाहिए, तो ही आप नेचर को एंजॉय कर पाओगे, अदरवाइज़ नहीं। मेरा नाम संदीप कच्छप है और मैंने एनिमल फिजियोलॉजी पे मास्टर्स कंप्लीट किया और भवंस नेचर एडवेंचर सेंटर में वॉलंटियरली नेचर ट्रेल बच्चों को, जो भी स्कूल विजिटर्स होते हैं या फिर कोई प्राइवेट ग्रुप या फिर कोई भी आते हैं, उनको बेसिकली नेचर से रूबरू कराना, ये मेरा काम है यहाँ पे। हमारे पास ये जो एरिया है इसको हम लोगों ने रेन फॉरेस्ट का नाम दिया है, जस्ट लाइक अ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है और वहाँ पे ज़्यादा बारिश होने के वजह से सनलाइट थोड़ा कम आता है। तो आप देख सकते हो बीच बीच में कहीं कहीं पे सनलाइट आ रहा है, एंड उसके वजह से, और आप ऊपर भी देखेंगे तो काफ़ी लंबे लंबे पेड़, बिकॉज रेन फॉरेस्ट में हमेशा ये कंपटीशन होता रहता है प्लांट्स ट्रीज में कि उनको सनलाइट चाहिए। अगर फॉरेस्ट ना हो तो बारिश का पानी ग्राउंड वाटर तक नहीं पहुंचेगा और वो पानी सी में डायरेक्ट चला जाएगा और हमें पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। सो रेन फॉरेस्ट और सारे फॉरेस्ट इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और इसके लिए हम लोग यहाँ पे बेसिकली बच्चों को सिखाते हैं, बिकॉज बड़ों को समझाना इज़ डिफ़िकल्ट, बट अगर यंग जनरेशन जो भी आ रहा है उन्हें अगर प्लांट्स एंड फॉरेस्ट का इम्पोर्टेंस सिखाया जाए तो शायद आने वाले जितने भी जनरेशन के लिए पीने का पानी अवेलेबल रहेगा। इसके लिए फॉरेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि छोटे छोटे मेडिसिनल प्लांट्स भी आप अपने घर पे लगा सकते हैं। इसका नाम है हड्डी जोड़ प्लांट और डेविल्स बैकबोन, बिकॉज आप देख सकते हैं जो हमारा बैकबोन होता है वैसे ही अलग अलग सेगमेंट, बट काफ़ी बड़ा बड़ा, इट्स लाइक डेविल्स का बैकबोन है, इसके लिए इसका नाम वैसा है। सो अभी तो हम लोग यूज़ नहीं करते सिटी में, बट अगर गांव साइड में आप जाओगे किसी विलेज में, वहाँ पे एनिमल्स के पैर अगर टूट जाते हैं तो उनको जोड़ने के लिए लोग अभी भी इसका यूज़ करते हैं। दिस इज़ करी लीफ। सो जो नहीं खाते उसको खाना चाहिए, बिकॉज वो आपका डाइजेशन में हेल्प करता है और आपका इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा, आप जल्दी बीमार नहीं होगे। स्पेशली बच्चे जो अवॉइड करते हैं ये क्या पत्ता है मम्मी ने डाला है, सो आप उसको खा सकते हैं। My name is Prabhu Swami. Right now we are Bhavans Nature and Adventure Center. So this is a place, so we started a rescue center, a small rescue center for wildlife, like especially for wild birds. There are some people who come to our center to give some rescue birds that they found near the building, they found somewhere across the roads. At that time we monitor the bird in what condition he is or what happened to him. So, and further we give some medications and we keep for some days, and some birds will remain with us like almost 6 months also, and then we release them once it's certified with the doctors and concerned person, then we release them in the wild again. फिर इस तरीके से हमारे पास ये भी एक बर्ड किसी ने कैंपस से लेके आके दिए थे, वो गार्डनर है कैंपस के, तो उन्होंने लेके आके दिया है।
ये रिंगनेक पैराकिट्स का सब एडल्ट है, मतलब बेबी बोल सकते हो आप। ये खुद से अभी खाता नहीं है, तो उसको हमको खिलाना पड़ता है। तो एटलीस्ट अभी ये और 3-4 महीने तो रहेगा हमारे साथ। ये जो बर्ड है ये सीड ईटर्स है, तो ये क्या करता है, जो भी फ्रूट्स खाता है उसका 80% वेस्ट करता है। तो जो वेस्टेज होता है उसमें सीड्स होते हैं, तो ये सीड डिस्पर्स का भी काम करते हैं। तो ये नए जंगल लाइक न्यू ट्रीज़ को ग्रो करने में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि ये जो माइनर्स वगैरह जहाँ शिफ्ट करते हैं तो ये वहाँ से न्यू जनरेशन चालू होता है। तो इस तरीके से भी हम वाइल्ड लाइफ को कंट्रीब्यूट करते हैं, रेस्क्यू करके उनको वापस रीहैब करने में। हमारे यजुर्वेद में जैसे कहा है, मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम, मित्रस्याहम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। मतलब कि लेट मी लुक अपॉन एवरी लिविंग बीइंग एज माय फ्रेंड एंड लेट all living beings look upon me as their friend. This is the message we want to give. We are all friends. Let us make this beautiful world more and more beautiful. I request all the youngsters to connect with Bhavan's Nature Adventure Center. Join us. Let us save humanity. Let's save wildlife. Let's conserve nature. And let us absorb the freshest divine oxygen. I would like to thank each and every one of you all for subscribing our channel, for liking and for commenting, and for all your suggestions that you all have given us. We really appreciate all your active participation for Talkie Tales. Thank you.